यार आरुषि, तेरे को क्या लगता है इस बार लोकसभा के इलेक्शन कौन जीतेगा? पलक, तू तो मुझसे ऐसे पूछ रही है जैसे ईवीएम की काउंटिंग मैं ही करती होंगी। फिर भी अपनी लोकेलिटी का माहौल देखकर कुछ तो समझ आता ही है। अपनी लोकेलिटी में भी तो वोटर्स रहते हैं, इलेक्टोरेट्स। ओ हाँ, मुझे तो लगता है इस बार बीजेपी हारेगी और कांग्रेस जीतेगी। तो ऐसा कैसे कह सकती है? डू यू नो द आइडियोलॉजी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल? नो, आई डोंट नो। फिर अंकल लोग कैसे डिसीजन बना लेते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी? This depends upon the political atmosphere, partition of different people, and most importantly, the campaigning. Dr. Bhimrao Ambedkar wrote in our constitution on the 26th January 1950, we are going to enter a life of contradiction. In politics, we will have equality. In social and economic life, we will have inequality. In politics, we will recognize the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall be the reason of our social and economic structure. Continue to tell the principle of one man, one value. So, for giving us more information, here is our third team with the theme Political Parties and Democracy. Democracy doesn't recognize East or West. Democracy is simply people's will. Therefore, I do not acknowledge that there are various models of democracy. There is just democracy itself. With this quotation, a warm and cheerful good morning to you all present here. I am Akshita Rawat of class 10th, here with my teammates. And today we are here to explain you democracy in political parties. So as the topic suggests, democracy in political parties, so let me first go through what is political party. So a political party is an organized group of people or bodies who seek to capture political power through an election in order to run the affairs of a country. Now this may seem a complex sentence for you. इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जब बहुत सारे लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, और वो लोग ऐसे ही नहीं होते, मतलब वो एक कॉमन आइडियोलॉजी में बिलीव रखते हैं। जब एक कॉमन आइडियोलॉजी में बिलीव रखने वाले लोग एक ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप जब एक इलेक्शन कंटेस्ट करता है तो उसे हम एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम देते हैं। ऐसे ही बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे इंडिया में हैं जो डिफरेंट आइडियोलॉजी में बिलीव रखती है। यही पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन कंटेस्ट करती है, और अगर इनमें से कोई पार्टी मेजॉरिटी ऑफ वोट से जीत जाती है तो उससे हमारे देश की सरकार चलाने का मौका मिलता है। इट इज़ अ वे टू मोबिलाइज वोटर्स टू सपोर्ट कॉमन सेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स एंड गोल्स। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि आइडियोलॉजी क्या होती है। तो आइडियोलॉजी इज सिंपली अ सेट ऑफ ओपिनियंस और आइडियाज़ ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, या इससे आसान शब्दों में कहें तो इट इज़ अ सेट ऑफ पॉलिटिकल बिलीव्स which characterize a particular culture such as communism, capitalism, socialism, Marxism, etc. Now, a political party usually includes a party leader which looks upon the activity of the party. Secondly, there are party executives which play a primary role in selecting the leader and also looking after the administrational and organizational task of the party. Thirdly, there are party members who help in volunteering the party, donating money to it, and also they help in voting for its candidates. So on a whole, we can say that पॉलिटिकल पार्टी हम सबके लिए एक ज़रिया है जिसके द्वारा हम अपनी बात गवर्नमेंट तक कह सकते हैं, एंड बाय डूइंग सो विल बी हैविंग अ से इन द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज अबाउट. अ पॉलिटिकल पार्टी इज सिमिलर टू अ फैक्शन एंड कैन बी द सेम थिंग. अ फैक्शन क्या होता है? A faction is a small group of people within a larger one which has some different beliefs in compare to that of the larger one. And जैसे कि हमने पहले भी देखा कि मेजॉरिटी ऑफ वोट से जो पार्टी जीतती है उसे हमारे देश को चलाने का मौका मिलता है, तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है. और उसके बाद जो नेक्स्ट लार्जेस्ट पार्टी विद द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इज नोन एज द अपोजिशन पार्टी, और वी कैन से कि द नेक्स्ट लार्जेस्ट पार्टी आफ्टर द विनिंग पार्टी इज नोन एज द अपोजिशन पार्टी. And sometimes there may be a situation when there is no party with the majority of seats in the election. At that very time, there is a coalition government in our country. A coalition government is a type of government in which two political parties came together to form a government. Now political parties and law. अब आपके मन में कभी ना कभी तो ये सवाल आया ही होगा कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है तो क्या वो अपनी पावर का कभी मिसयूज़ नहीं कर सकती. तो let me take you through an incident that took place in 1975.
उस टाइम पे इंदिरा गांधी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी। उस समय पे इंदिरा गांधी ने एक इमरजेंसी चलाई थी। नाउ व्हाट इज़ इमरजेंसी? इमरजेंसी इज़ अ सिचुएशन इन विच ऑल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल आर टेकन अवे। और उस टाइम पे भी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी चलाई थी। एंड दिस वॉज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन इंडिया वॉज फेसिंग इमरजेंसी। पहले भी इंडिया ने 2 बार इमरजेंसी फेस कर चुकी थी। फर्स्ट ड्यूरिंग 1962 ड्यूरिंग द इंडो चाइना वार, secondly during 1971 during the Indo-Pakistan war. And also it is constitutionally provided that a president can declare emergency in case if there is any external and internal threat to the security of the country. तो उस टाइम पे जब इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लागू की थी तो लोगों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे क्योंकि उनसे उनकी फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे थे। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट के बाद 1977 में जाके वापस से इमरजेंसी वापस ले ली गई थी। वैसे ऑफिशियली ऐसा कोई लॉ नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनकी पावर को मिसयूज़ करने से रोके। जैसे कि हमने देखा, सबने पढ़ रखा है कि नाज़ी पार्टी ने ऐसा जर्मनी में किया था। जैसे कि जब हिटलर पावर में आया था तो हिटलर ने अपनी पावर का मिसयूज़ करके अपनी देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलीगल कर दिया था। एंड सम कंट्रीज़ मेक एक्सट्रीम साइड पार्टीज़ इलीगल। अब साइड पार्टीज़ क्या होती है? साइड पार्टीज़ 2 टाइप्स की होती है, एक होती है लेफ़्ट विंग और एक होती है राइट विंग। अब इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? इसका कॉन्सेप्ट आया है फ्रेंच से। फ्रेंच में जब पहले डिक्टेटरशिप्स थी तो लोग जब पहले वहाँ पार्लियामेंट में इकट्ठा होते थे तो जो लेफ़्ट साइड को बैठने वाले लोग होते थे वो रेवोल्यूशनरीज़ होते थे जो चाहते थे कि हमें डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए। उसके विरोध में जो लोग होते थे वो लेफ़्ट साइड को बैठते थे। और जो राइट साइड वाले लोग होते थे वो होते थे जो डिक्टेटरशिप चाहते थे। वो चाहते थे कि हाँ, हमारे देश में डिक्टेटरशिप ही चले। उसी का कॉन्सेप्ट है ये। तो लेफ़्ट साइड वाले जो लोग होते हैं वो बेसिकली कम्युनिस्ट जो होते हैं, सोशलिस्ट जो होते हैं, और जो राइट साइड वाले लोग होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। तो कुछ कंट्रीज़ ने ऐसी साइड पार्टीज़ को इलीगल कर रखा है अपनी कंट्री में। एंड एट अदर टाइम्स कंट्रीज़ हैव आउटलॉड फॉर फार लेफ्ट पार्टीज़ लाइक वेस्ट जर्मनी बैंड द कम्युनिस्ट पार्टी इन 1956। तो कुछ कंट्रीज़ ने लेफ़्ट साइड पार्टीज़ को अपनी कंट्री में इलीगल कर रखा है। And countries like China, North Korea and Cuba still have no party dictatorship. In a few other dictatorships such as Saudi Arabia, and all political parties are banned and there is no parliament at all. तो कंट्रीज़ जैसे कि सऊदी अरेबिया, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है तो वहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलीगल कर रखा है। नाउ हियर आर सम नेम्स ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाज़ फर्स्ट पार्टी इनकॉर्पोरेटेड, ऑस्ट्रेलियन अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टी, ऑस्ट्रेलियन डेमोक्रेट्स, ऑस्ट्रेलियन प्रोटेक्शनिस्ट पार्टी, बिल्डिंग ऑस्ट्रेलिया पार्टी। नाउ सम पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंग्लैंड सच एज कंजर्वेटिव पार्टी विच प्रमोट्स ब्रिटिश कंजर्वेटिज्म, लेबर पार्टी विच प्रमोट्स सोशल डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेट्स विच प्रमोट्स liberalism and federalism, Green Party of England and Wales which promotes green politics, eco-socialism and republicanism. Now I would like to hand over my mic to Mahi. Hi everyone, my name is Mahi और अभी आपको जैसे अक्षिता ने बताया कि what are basically political parties. Political parties क्या क्या होती हैं और पॉलिटिकल पार्टी से हमने कुछ रिलेटेड लॉज भी देखे। उसके बाद वी ऑल्सो सॉ सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी पार्टीज़ है पॉलिटिकल पार्टीज़ और इंग्लैंड में कौन कौन सी बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। नाउ फ्रॉम हेयर आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। एज यू कैन सी दिस हेडलाइन इज कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म। The first one is the democracy and the second one is the political party. अभी तक टीम ए से भी देखा, टीम बी से भी देखा और हमारी टीम के एक मेंबर ने भी आपको बताया कि जो डेमोक्रेसी पार्टी होती है बेसिकली दे आर सिंपली द रूल ऑफ द पीपल, जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर अपने ओपिनियंस को, अपने आइडियाज़ को और अपने इंटरेस्ट को खुली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। और वहीं दूसरी तरफ अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए तो इसे बहुत सिंपल वे में समझते हैं। एक ग्रुप ऑफ सिटीज़न जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में इलेक्शन को जीतती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उसके हाथ में पावर होती है जो कि आराम से गवर्नमेंट को चला सकती है। अब ये जब 2 टर्म आपस में मिल जाते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी। अब वो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डेमोक्रेटिक कहा जाता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हमें ये समझना ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी किन किन कंपोनेंट से बनी हुई है।
पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर क्या है? एज यू ऑल नो दैट कि एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन कंपोनेंट। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के भी खुद के कंपोनेंट है, जिसे हम बोलते हैं पंच तत्व, चाहे वो स्काई हो, वाटर हो, अर्थ हो, फायर हो, एयर हो। ठीक उसी तरीके से सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टीज के भी कुछ अपने कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज द लीडर। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो लीडर होता है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। वो किसी भी पार्टी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है, क्योंकि लीडर के कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो उसे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। जैसे एक लीडर का काम होता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में और पब्लिक यानी जो वोटर्स के बीच में रिलेशन होता है उसे बैलेंस करता है, उसे मैनेज करता है। इसके अलावा ड्यूरिंग द इलेक्शन जो लीडर्स होते हैं वो वोटर से अपील करते हैं कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा वोट उनकी पॉलिटिकल पार्टी को दें, जिस वजह से उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मेजॉरिटी में इलेक्शन जीत सके। सेकेंड, वी हैव एक्टिव मेंबर्स। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिना एक्टिव मेंबर के ज़्यादा चल सकती है, क्योंकि जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं दे प्ले देयर क्रूशियल रोल इनसाइड द पॉलिटिकल पार्टीज। अब वो क्रूशियल रोल क्या क्या हैं? द फर्स्ट वन इज़ द कैंपेन। ये तो हम सभी ने अपने लोकेलिटीज़ में, अपने एरियाज़ में देखा होगा कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उससे पहले कुछ रैलीज़ होती हैं, कुछ कैंपेन्स निकाले जाते हैं, कुछ सभाज होती हैं, जहाँ पर वो जो वोटर्स होते हैं उनसे वोट मांगने का पूरा ट्राई करते हैं। एक्टिव मेंबर का कैंपेन में ये काम होता है कि वो वोटर्स के बीच में और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट ना होने दे, किसी भी तरीके की इनस्टेबिलिटीज़ ना आने दे। उसके अलावा वॉलंटियर कोऑर्डिनेशन, वो एक वॉलंटियर की तरह काम करते हैं हु वर्क्स फॉर द फ्री। सो द थर्ड पॉइंट इज द पॉलिसी डेवलपमेंट फॉर एक्टिव मेंबर्स। जब भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, कोई भी नया डिसीजन लिया जाता है, तो जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं वो उस पर अपना फीडबैक देते हैं कि अगर उनकी पार्टी के अंदर कोई भी पॉलिसी बननी है तो वो पॉलिसी एक लोगों के लिए बेटर पॉलिसी हो, जिस वजह से ज़्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके और उनकी पार्टी को मेजॉरिटी में वोट दे सके। थर्ड, वी हैव फॉलोवर्स। जो फॉलोवर्स होते हैं दे ऑल्सो प्ले सेवरल की फंक्शन इनसाइड द पॉलिटिकल पार्टी। ये तो हम सभी जानते हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के जितने ज़्यादा वोटर्स होते हैं, उनके पास जितनी ज़्यादा पब्लिक होती है, वो पार्टी उतनी ज़्यादा पॉपुलर होती है और मेजॉरिटी में होती है। इसके अलावा फीडबैक एंड कम्युनिकेशन। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि आई एम द फॉलोवर ऑफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मेरी पार्टी के अंदर कोई भी रूल बनना है, कोई भी डिसीज़न लिया जा रहा है, तो ये मेरा कार्य है कि मैं उस डिसीज़न के लिए अपने आप फीडबैक दूं। अगर उस पॉलिसी में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करना बाकी है तो मैं अपनी पार्टी को बताऊं कि यस, आप इसमें इस तरीके का मॉडिफिकेशन कीजिए, इसमें ये वाली चीज़ ऐड ऑन कीजिए, जिस वजह से जो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आए। तो ये सब थे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट। नाउ आप सबके मन में एक क्वेश्चन होगा कि डेमोक्रेसी के लिए, इलेक्शंस के लिए व्हाई वी ऑल आर स्टडिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में क्यों सोच रहे हैं। एक सिंगल इंडिविजुअल भी तो इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है, उसे जीत सकता है। सो व्हाई देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इसके कई सारे रीजन हैं, जैसे द फर्स्ट वन इज द रिप्रेजेंटेशन। द फर्स्ट वन इज द रिप्रेजेंटेशन। जो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं दे आर लाइक अ प्लेटफॉर्म फॉर द वोटर्स, जहाँ पे वो अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे फॉलोवर हो गया, लीडर हो गया। उनके पास डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती है, ओपिनियन होते हैं, पॉलिसीज होती है, जो कहीं ना कहीं वोटर यानी पब्लिक की आइडियोलॉजी से अट्रैक्ट होती है। इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर एक सिंगल इंडिविजुअल की बात की जाए तो एक सिंगल इंडिविजुअल के पास ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आइडियोलॉजी और पॉलिसी होगी? 20, 30, 40, 50, इससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक कि उसके पास होगी। तो वो कैसे थाउजेंड्स ऑफ द वोटर्स, लैक्स ऑफ द वोटर्स की आइडियोलॉजी के साथ अट्रैक्ट कर सकती है? सो एक ये सबसे बड़ा रीज़न है कि देयर इज़ अ नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी रेदर देन अ सिंगल इंडिविजुअल। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं तब कैंपेन्स होते हैं, रैलीज होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो बहुत तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कंडक्ट करती है, जहाँ पर जो हमारे वोटर्स होते हैं, जो पब्लिक होती है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को पहचान पाते हैं कि क्या जो पार्टीज़ ने कैंडिडेट खड़ा करा है वो उनका रिप्रेजेंटेटिव बनने योग्य है भी या नहीं। थर्ड इज़ स्टेबिलिटी। अगर इंडिया के अंदर की बात की जाए तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अभी मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है? जहाँ पर दो या दो से मतलब बहुत ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होते हैं वो अभी आगे डिस्क्राइब करेंगे।
अभी के लिए इतना समझना काफ़ी है कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब मल्टी पार्टी सिस्टम के चलते इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है। अब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है तो इसका मतलब देयर इज़ अ ह्यूज कंपटीशन बिटवीन दी पार्टीज। अब इसी कंपटीशन की वजह से जो लोग हैं उन्हें ये लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं कंपटीशन के चलते जो बेटर पॉलिसीज़ उनके लिए आएगी उसके लिए पार्टीज आपस में एक दूसरे को अपोज करेगी। इस वजह से उनके लिए एक बेटर पॉलिसी सामने निकल के आएगी। अब हमने ये सब तो देखा कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसके लिए हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को चुनते हैं, ना कि एक सिंगल इंडिविजुअल को। अब इससे आगे निशा विल एक्सप्लेन यू कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। Hello everyone, I am Nisha. Now I will explain you what are the factors which makes political parties democratic. First one is parties contest election. Means जो different political parties की candidates होते हैं वो अपने opposition parties के साथ compete करते हैं to win the election. Now there is also a difference in choosing candidates. For example, if we talk about in USA में जो members and supporters of political parties होती हैं वो choose करती है candidates को for contesting election. If we talk about in इंडिया में जो top leaders होते हैं वो candidates को choose करते हैं different area से. Second factor is parties form and run the government. In this जो parties होती हैं वो अपनी government form करती है. Means सेंट्रल लेवल और वी कैन से स्टेट लेवल पर अपनी पार्टी रूल करती है जो इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट्स ऑब्टेन करती है। एंड जो कैंडिडेट्स होते हैं उनमें से टॉप लीडर्स चूज़ करे जाते हैं, उन्हें हम मिनिस्टर्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल होम मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स, वीमेन एंड वेलफेयर मिनिस्टर्स एक्सेट्रा। एंड दीज मिनिस्टर्स फॉर्म्स पॉलिसीज, प्रोजेक्ट एंड मेक मेजर डिसीजन फॉर ऑल ओवर दी country development. Third one is parties shape public opinion. जो parties होती हैं different वो पब्लिक से रिलेटेड इशू को हाईलाइट करती है। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, एजुकेशन एक्सेट्रा। एंड उनमें डिसीजन बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है, प्रोजेक्ट बनाती है सो दैट उस इशू को रिड्यूस करा जा सके। नाउ फ्रॉम हियर वी विल एक्सप्लोर अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। First one is one party system. In this party system, only one party is allowed to form and run the government. For example, China and Cuba. Second one is two party system. In this system, there are majorly two parties are allowed to form and run the government, and these parties compete करती है एक दूसरे के साथ so that वो election में जीत पाए. Not that mean यहाँ कोई तीसरी political parties नहीं है, but they don't get much votes which can form the government. For example, USA and UK. Third one is multi-party system. In this system, there are multiple parties are allowed to form and run the government. For example, India and New Zealand. Here, this is the question arise that why there is a need to form two-party system and multi-party system rather than one-party system. So, one-party system is not good for democracy. Till now, we have looked about different political party system and their function for action for which they are considered as a part of democracy for the entire world. If we talk about in India, as we can see, हमारे वहाँ diversity देखने को मिलती है और for example in languages, in religion, in cultures, etc. So यहाँ one party system नहीं चल सकता है because सबकी अलग अलग ideology है, beliefs है. That's why यहाँ multi party system की requirement पड़ती है. Now Anokhi will explain you further about the political parties in India. Good morning everyone, I am Anokhi Negi of 10th standard is here standing in front of you all to describe my topic political party. So basically political party three types की होती है. First national party. इन पार्टीज़ के चुनाव जो होता है वो कई स्टेट्स, कई राज्यों में होते हैं जिनकी मौजूदगी के रूप में उनकी मान्यता दी जाती है। जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारत देश में कुल 7 नेशनल पार्टीज़ हैं जिनमें से ये भी है। सेकंड, स्टेट पार्टी। इन पार्टियों के मुख्य रूप से एक राज्य में काम करती है और उस विशेष राज्य में अनेक उनके प्रदर्शन के आधार पर पहचानी जाती है। थर्ड, रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी एकदम स्टेट पार्टी की तरह होती है। रीजनल पार्टीज़ का काम होता है एक किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में ध्यान रखना, उसके इर्द गिर्द जितने भी स्टेट्स आते हैं उन पर भी नज़र रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में भी नज़र रखना और उसके इर्द गिर्द जो भी स्टेट्स है लाइक पंजाब, हरियाणा, उन पर भी नज़र रखना। नाउ क्वेश्चन राइज, व्हाट आर दोज फैक्ट्स बाय विच वी कैन
considered that the division of political party in India is an aspect of democracy. So basically there are some key features. First, representation. इंडियन पॉलिटिकल पार्टी में इंडियन पॉलिटिकल पार्टी के समाज में अलग अलग हितों और समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे समाज में नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में आवाज़ उठाने का अधिकार मिलता है। सेकंड, इलेक्टोरल कंपटीशन। भारतीय राजनीतिक दल में पूरी तरह से वोटर्स को उनके चॉइस प्रोवाइड कराने का काम करती है। थर्ड, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इसमें भारतीय राजनीतिक दलों ने ऐसी नीतियाँ, ऐसी पॉलिसीज़ डेवलप की है, विकसित की है, जो प्रचलित की है, जो उनके आइडियोलॉजीज, विचारधाराओं को प्रतिबिंब करती है, जिससे सरकारी एजेंडाज को बचाने में मदद मिलती है। फोर्थ, चेक एंड बैलेंस। विपक्ष के लिए एक मंच प्रोवाइड कराने का काम करती है और यह पार्टियां जांच व चेक करती है कि कोई गवर्नमेंट को चेक करने का काम करती है। लास्ट, कोलिशन। जब मेजॉरिटी में कोई पार्टी जीत नहीं पाती, मतलब जितने उनको वोट्स चाहिए होते उतने वो वोट्स नहीं मिलते, तो तब दो पार्टी थोड़े थोड़े वोट्स करके एक बड़ी पावर बनाती है। इसी को हम कोलिशन कहते हैं। नाउ दिस इज द टाइम टू नो अबाउट कंडीशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन आवर स्टेट उत्तराखंड। सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल निशा करगेदी। Now this is the time to know about the condition of political parties in our states, that is called Uttarakhand. As we can see, after separating from Uttar Pradesh, we can see हमारे जो स्टेट है वहाँ बीजेपी एंड INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेंस देखने को मिला है। What are the reason behind it? With their ideology. First one is BJP, भाजपा जनता पार्टी। भाजपा जनता पार्टी हमारे स्टेट्स की अभी रूलिंग पार्टी है एंड इट फोकसेस ऑन डेवलपमेंट, नेशनलिज्म एंड हिंदुत्व। Second, Congress. Congress is the strongest opponent of BJP and it focuses on nationalism, development and the believe in Gandhian philosophy. Third one is regional party. Small parties like Uttarakhand Kranti Dal. It focuses on local issues like migration को कम करना, employment को बढ़ाना, citizen को नशा से मुक्त करना, etc. Overall, Uttarakhand politics are influenced by its geographical challenges, socio-economic factors and need for sustainable development. Now from here, Mahi will explain you what are the challenges to democracy in political parties. So, जैसे कि अभी हमने देखा कि जो डेमोक्रेसी है वो कैसे पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करती है, या फिर वी कैन से कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो डेमोक्रेसी से कैसे रिलेट करती है, दोनों आपस में मिक्सअप है। सो अब जैसे डेमोक्रेसी हमें दिखाई दे रही है, हमने नेशनल पार्टीज इन इंडिया, हमने ये कंडीशन देखी, इसके अलावा हमने अपने ओन स्टेट उत्तराखंड के अंदर भी क्या क्या पॉलिटिकल पार्टी की कंडीशंस है हमने वो भी देखी। लेकिन अब जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आप डेमोक्रेसी देख रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए इतना आसान नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बने रहना, बिकॉज डेमोक्रेसी फेसेस लॉट ऑफ चैलेंजेस। डेमोक्रेसी को कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जैसे द फर्स्ट वन इज अथॉरिटेरियनिज्म। अथॉरिटेरियनिज्म इज अ काइंड ऑफ कंडीशन, या फिर हम कह सकते हैं एक फैक्टर है जहां पर जो हाई लेवल रैंक्स की पार्टी होती है, जो मेजॉरिटी में होती है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है, जिन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, वो बहुत हद तक जो अपने से छोटी लेवल रैंक्स की पार्टी होती है, जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती या फिर जिन्हें ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं मिलती, उन्हें क्या करती है, उन पर एक प्रेशर क्रिएट करती है, उन्हें सप्रेस करने की अपनी पूरी कोशिश करती है, जिस वजह से ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पर जो लो रैंक की पॉलिटिकल पार्टी है वो नीचे आ जाती है, उन्हें कभी भी ऊपर जाने का मौका नहीं मिलता। The second one is the corruption. अगर करप्शन की बात की जाए तो करप्शन इज जस्ट नॉट ओनली रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ द पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल पार्टी, इट इज रिलेटेड एवरीवेयर, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट करप्शन स्पेसिफिक टू द पॉलिटिकल पार्टीज, तो करप्शन के चलते कई सारे वोटर्स खरीदे जाते हैं, चाहे वो मनी के बेसिस पे हो, चाहे फिर वो किसी और अदर नीड्स के बेसिस पे हो। करप्शन के चलते जो करप्टेड वोटर्स खरीदे जाते हैं वो एक ऐसी पार्टी को वोट देते हैं जो कि हो सकता है आने वाले फ्यूचर्स में अपनी पब्लिक के लिए, अपने वोटर्स के लिए बिल्कुल सही नहीं होती। ऐसे में वो पार्टी सामने आती है जिनकी पॉलिसीज, जिनके डिसीजन कहीं ना कहीं लोगों को अफेक्ट करते हैं। थर्ड वी हैव पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म इज बेसिकली ऐसी कंडीशन है या फिर एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पर दो अपोजिशन पार्टीज एक दूसरे को पूरी तरीके से नीचे गिराने की पूरी कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को नीचे गिराना चाहती है, जिस वजह से लोग उसे ज्यादा से ज्यादा वोट ना दें, और ऐसा करने के लिए वो हेल्प लेती है जो हमारे ऑर्डिनरी और कॉमन पीपल होते हैं लाइक अस। वो हमारी हेल्प से हमें इस चीज के लिए कन्विंस करती है कि जो हमारे इश्यूज है हमारे सोसाइटी में
जैसे सोशल इनइक्वालिटीज हो गया, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हो गया, सोशल इनजस्टिस हो गया, हम ऐसे टॉपिक पर अपनी वॉइस रेज करें और उनके कहे अनुसार उनकी अपोजिशन पार्टी पे हम इन सभी चीज़ों के लिए इल्ज़ाम लगाएं, जिस वजह से उनकी अपोजिशन पार्टी को वोट ना मिल पाए। सो दिस इज नोन एज द पॉपुलिज्म। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में पॉपुलिज्म बहुत ज़्यादा है। फोर्थ, वी हैव सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब जब पावर एक ही हाथ में कंसंट्रेटेड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बीजेपी को देखें हमारे ओन स्टेट उत्तराखंड में, तो 2014 से कंटिन्यूटी के साथ जो बीजेपी है वो इलेक्शन जीतते हुए आ रही है। ऐसे में उसकी जो अपोजिशन पार्टीज के फॉलोवर होते हैं, जैसे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीएसपी, उनके फॉलोवर्स ये सोचते हैं कि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो कहीं ना कहीं करप्टेड है, वो कहीं ना कहीं तरह तरह के घोटाले करती है, जिस वजह से वो 2014 के साथ कंटिन्यूटी से इलेक्शन को जीतते आ रही है। इससे कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है वो बहुत हद तक गिर जाती है। अभी हमने देखा कि डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या चैलेंजेस है जो डेमोक्रेसी फेस करती थी, कर रही है, और अगर इनके लिए सॉल्यूशन नहीं निकाले गए तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में डेमोक्रेसी यही चैलेंजेस को फेस भी करे। सब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे डेमोक्रेसी के जो चैलेंजेस है उन्हें ओवरकम करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है वो है रिफॉर्मेशन ऑफ पार्टी। रिफॉर्मेशन ऑफ पार्टी का मतलब होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को बेहतर बनाने के लिए उसका सिस्टम ही चेंज कर दिया जाए। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है। सो द फर्स्ट वन इज द इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी के अंदर हमें ऐसी कई अलग अलग तरह की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उन्हें एनकरेज करना चाहिए। अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या होती हैं, जैसे ओपन प्राइमरीज, या फिर हम बोल सकते हैं ओपन प्राइमरीज इलेक्शन, जहाँ पे जो वोटर्स होते हैं उनके पास ये राइट है कि वो बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी काइंड ऑफ फोर्स के किसी भी पार्टीज को वोट दे सकते हैं। सेकंड इज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ कैंडिडेट सिलेक्शन। जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा करती है तो उस समय जो वोटर्स है यानी जो पब्लिक है उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किस बेसिस पे और किस गाइडलाइन पे उन्हें खड़ा किया जा रहा है। द सेकंड वन इज द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एज वी ऑल नो कि जो एजुकेशन है इट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन चेंज एवरीथिंग। सो व्हाई नॉट पॉलिटिकल पार्टीज? विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन हम जो पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट है, जैसे हमारे लीडर्स हो गया, हमारे एक्टिव मेंबर्स हो गए, हमारे फॉलोवर्स हो गए, हम उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हैं, उन्हें ट्रेन कर सकते हैं कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी को बरकरार रखें। द थर्ड वन इज द कोलैबोरेशन which is the most important factor। कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि जब दो पार्टी एक साथ आती है और एक कोएलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। ये फैक्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब कभी दो पॉलिटिकल पार्टी में से एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन हार जाती है तो वो कहलाती है लो लेवल रैंक पॉलिटिकल पार्टी, और जब दो लो रैंक पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आती है तो वो एक बड़ी पार्टी फॉर्म करती है, जहाँ पर कहीं ना कहीं जो दो पार्टी के बीच में अपोजिशन है, जो इनस्टेबिलिटीज को क्रिएट कर रहा है, वो बहुत हद तक खत्म हो जाता है। सो ये तो थे स्ट्रेटेजी जिससे जो डेमोक्रेसी है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर उसके लिए जितने भी चैलेंजेस है वो उससे इजीली ओवरकम कर सके। उसके अलावा जो यही फैक्टर्स हैं दिस कैन हेल्प द पॉलिटिकल पार्टीज to become more responsive, more relevant and more representative in changing political landscape. Now it's time to move toward the conclusion of our topic कि अभी तक हमने क्या क्या देखा, क्या क्या जाना कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। एज अ कंक्लूजन आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं दे आर वेरी एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना दे आर लाइक अ व्हीकल जो कि कंटिन्यूटी के साथ वोटर्स के लिए रिप्रेजेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी और पार्टिसिपेशन को प्रोवाइड करवा रही। ड्यूरिंग आवर एक्सप्लेनेशन आप सबने ये भी देखा होगा कि जो डेमोक्रेसी है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इट फेसेस लॉट ऑफ चैलेंजेस, जैसे अथॉरिटेरियनिज्म, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, करप्शन, जिस वजह से जो डेमोक्रेसी की वैल्यू है पॉलिटिकल पार्टी में वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक गिर जाती है। लेकिन अगर हमें इन चैलेंजेस से ओवरकम करना है, डेमोक्रेसी को आने वाले फ्यूचर के लिए बरकरार रखना है, तो हमें फॉस्टरिंग प्लूरलिज्म, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ कैंडिडेट सिलेक्शन विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हमें इन सारी चीज़ों से डेमोक्रेसी को इतना पावरफुल बनाना है कि वो किसी भी तरीके के चैलेंजेस से लड़ सके और पॉलिटिकल पार्टीज में बने रह सके। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन प्रमोटिंग रिफॉर्म that strengthen democratic norms within parties is essential for the democracy as a whole. And at the last, I would like to wind up our topic with a positive thought that empower your voice, embrace democracy. Thank you very much.